Jai Hind, friends. I hope all of you are doing well in your studies. And today, in this important lecture, we are going to discuss about a very important migration model, which is the model of George Kingsley Giff. And this is principle of least effort. It is very important migration model. And in previous lectures, we covered Ravenstein's migration model and the model of law of retail gravitation, or we can say it gravity model of migration by W.J. Rayleigh. So these are some important previous lectures as well. So you can also watch those videos because these three models are known as deterministic models of migration, or you can say deterministic theories of migration, like Rayleigh's work on law of retail gravitation, and on the basis of law of retail gravitation he developed the gravity model of migration, and the works of E.G. Ravenstein, which is a classical work of migration and one of the most important and oldest theory in 1880s. And now today in this current lecture we are discussing on G.K. Gibbs principle of least effort. So in the theories of migration, or in the models of migration, there are two categories of theories. One is deterministic type of theories and another is possibilistic type of theories. In deterministic type of theories, there is a certain rules and regulation, and a migrant should follow those rules and regulations for migration. So migrant follow those rules and regulation. There are certain rules, and it is known as deterministic approach. Migrant has no his own uh, behavioral approach or decision making, mental maps, and all these things. So he's bounded with the rules and regulations. And in other hand, the possibilistic models give migrant a chance for his own decisions, to develop his own decision. So that's why this is a very important and very you can say a unique type of difference between these two approaches of migration theories, possibilistic and deterministic. So these three are most important deterministic theories: Ravenstein's law of migration, Rayleigh's law of retail gravitation, or we can say gravity model of migration, and third is in that we will discuss in today's lecture. It is principle of least effort by G.K. Giff. तो हम लोग दोस्तों जीके जिफ का जो थ्योरी है उसको आज देखेंगे। और अभी तक जो मैंने बताया, अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मेनली जो माइग्रेशन की थ्योरीज है, जो माइग्रेशन के मॉडल्स हैं, वो दो तरह के हैं। कुछ तो नियतिवादी विचारकों के मॉडल हैं, नियतिवादी सिद्धांत हैं, जिसमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जो प्रवास करने वाला पर्सन है वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। और माइग्रेशन एक बधे हुए तरीके से है, जो पर्सन का खुद का अपना सोच है। कोई जैसे जब हम संभववाद की बात करते हैं, जब हम पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, या मनुष्य के खुद निर्णय लेने की क्षमता की बात करते हैं, तो उस एस्पेक्ट में वो नहीं सोच सकता। तो माइग्रेशन को उस वे में नहीं देखा जाता है। एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसी वे में माइग्रेशन होना है। जो निर्णय लेने की मनुष्य की अपनी क्षमता है वो वहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं करती है। सो दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल्स, और इसको हिंदी में कह सकते हैं नियतिवादी विचार वाले ये सिद्धांत है। इसीलिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि रेवेंस्टीन किस तरीके के विचारक थे। तो वो एक नियतिवादी विचारक थे। हालांकि इस चीज को किताबों में उतना डीपली डिस्कस नहीं किया गया। कुछ अच्छी किताबें, जैसे अगर आप आरसी चांदना सर की पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे एक प्रॉपर कैटेगरी बनाई गई है कि ये तीन जो ज्योग्राफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये लोग अपना नियतिवादी विचारक हैं और इन्होंने उसी वे में अपने थ्योरीज को प्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद के अगर हम सिद्धांत देखें,
जहाँ देखिए इसको सिंपल कैटेगराइजेशन करने का, इसको समझने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी बुक्स में चीज़ मेंशन नहीं होती है, और जब भी हम लोग नियतिवाद और संभववाद की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं। लेकिन इसको सिंपल वे में समझने का एक यही तरीका है कि जहाँ पर कहीं न कहीं ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इंटरवेंशन चीज़ हो रही है, मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता जो है उस वे में बात अगर हो रही है, जैसे अगर हम इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल देखें, या हम कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल देखें स्टोफर का, हम ली का मॉडल देखें, या उसके आगे की जो बिहेवियरल थ्योरीज है माइग्रेशन की उसको देखें, तो उन सब थ्योरीज में, उन सब मॉडल्स में कहीं ना कहीं ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी एक कह सकते हैं कि महत्व दिया गया है, उसको भी एक स्थान दिया गया है। लेकिन जिफ के मॉडल में या इन सब मॉडल्स में, रेवस्टीन का हो गया या रैली का हो गया, उसमें इस चीज का जो है हमें एक इसकी कमी एक नजर आती है, और ये इसकी आलोचना का भी एक पॉइंट है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये तीन तो हो गए आपके नियतिवादी विचारकों के सिद्धांत, जिसमें कि एक हम आज देखने वाले हैं और दो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। बाकी जो बचे हैं स्टोफर के, ली के, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो ऑलरेडी हम लोग जो हमारे ओल्ड लेक्चर्स हैं वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कवर किए हैं कि जो वो टाइम पीरियड चल रहा था, बेसिकली ये जो मॉडल आया ये आता है 1940s में, 1940 में ये सिद्धांत आया। और 1940 का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसके पहले कहीं ना कहीं, और ये भी यूएसए के ही रहने वाले थे, जॉर्ज किंग्सले जी एक लिंग्विस्ट थे, लैंग्वेज पे इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क आपको मिलेगा। तो और उसी में इनका पूरा रिसर्च वर्क भी है, और लैंग्वेज से ही आया है ये मॉडल भी। बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ भी आपको मेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप इस मॉडल को डीप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि कैसे कोई पर्सन लैंग्वेज का यूज करता है, वर्ड्स का यूज करता है, हाउ ही सेलेक्ट द वर्ड्स, हाउ ही स्पीक द लैंग्वेज। सो दैट इज द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, यही इस मॉडल का बेस है। वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा था, अपने एंड की ओर था, काफी हद तक खत्म हो चुका था 1929 से। 1940 का ये मॉडल है, तो 1930 के दशक के लास्ट में कहीं ना कहीं यूएस से ग्रेट डिप्रेशन से बाहर जो है ऑलमोस्ट आ चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था, और हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ देखे थे कि यहाँ पे कुछ मैंने तस्वीरें भी लगाई हैं ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड की, कि इस तरीके से काफ़ी फोर्स्ड माइग्रेशन भी हुए, स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा क्रैश होता है वॉल स्ट्रीट में, लोग काफ़ी बेघर भी हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और गवर्नमेंट ने जगह जगह लोगों को काम भी दिया, नेशनल पार्क्स बन रहे थे। और इस तरीके से जगह जगह गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए रोजगार भी अपने लेवल पे प्रोवाइड किया था। और वो किस किस में हुआ था, जब रूजवेल्ट आए थे, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आए तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज वो लेके आए, नेशनल पार्क्स बनाना, कैनाल्स बनाना, इस तरह का काम करना। तो वो एक डेवलपमेंट का काम भी हुआ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और हम लोगों ने उन लेक्चर्स में हर्बर्ट हूवर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पे भी बात की थी वहाँ पे। तो हूवर के समय में ग्रेट डिप्रेशन आया, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने पॉलिसीज के माध्यम से उस ग्रेट डिप्रेशन को खत्म करने का काम किया। तो ये पूरी चीजें चल रही थी, और अगर हम इस बैकग्राउंड को समझें तो कहीं ना कहीं उस समय इस तरह की थ्योरीज बहुत डेवलप हो रही थी। अगर हम 1929 का जो रैली का मॉडल है, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, उस पर भी बात करें, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किस तरीके से जो फुटकर व्यापार का एक नियम वो प्रतिपादित करते हैं, किस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कैसे आएंगे, और किस तरीके से बिजनेस में एक हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुछ इसी एस्पेक्ट में वो अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अगर हम मेन टारगेट देखें तो वही चीज थी। और जो उस समय माइग्रेशन के मॉडल्स आ रहे थे वो उसी तरीके के आ रहे थे। नॉट ओनली माइग्रेशन मॉडल्स, अदर भी जो पॉपुलेशन की थ्योरीज हैं, सेटलमेंट की थ्योरीज हैं, क्योंकि ये जितने भी स्कॉलर्स थे, यंग स्कॉलर्स थे, इनको काम पर लगाया गया था कि आप ऐसे मॉडल्स पेश करिए, ऐसी चीजें पेश करिए जिससे जो हमारी कंट्री क्राइसिस में है वो उससे निकल सके। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन को देखा,
उस समय आप ये भी देखिए कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है 1740s के बाद से लेकर के जो मतलब ब्रिटेन के बाद अब ये जो यूएसए वाला रीजन है इसमें कहीं ना कहीं स्टार्ट वो पहले ही हो चुकी थी। तो अपने एक अच्छी कंडीशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी यहाँ पे यूएसए में। लेकिन चूंकि डिप्रेशन का टाइम था इसलिए थोड़ा तो चीजें स्लो डाउन हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जो यूएसए का सबसे मेन चीज थी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और वॉर इकोनॉमी, उसने अच्छा काम किया और उसने यूएसए को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाने का कार्य किया। तो ये तो पूरा एक बैकग्राउंड हो गया कि क्या उस समय, और किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए ये बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जहाँ ये थ्योरी डेवलप हुई वहाँ पे क्या चल रहा था। और चूंकि ये थ्योरीज अगर आप देखें तो मोस्टली या तो जर्मनी में या यूरोपियन किसी अदर कंट्री में या फिर यूएसए में डेवलप हुई है। मोस्टली ज्योग्राफी की थ्योरीज जो मॉडल्स हैं वो इन्हीं कंट्रीज में, इन्हीं रीजन्स में डेवलप हुए हैं। और इन रीजन्स का जो कॉन्टेक्स्ट उस समय रहा होगा, जो इस समय बैकग्राउंड रहा होगा, वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या कोई रीजनल वॉर, अगर कुछ भी चल रहा है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरीज भी डेवलप हुई। और जो वहाँ पे चल रहा था उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर भी पड़ता था, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। यूएस हुआ या कोई यूरोपियन कंट्री हुई उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें। सो ये रोल था यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो अब आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि जब ये थ्योरी आई 1940 में तो विश्व में क्या स्थितियां उस समय बनी हुई थी, क्यों इस तरह की थ्योरीज आ रही थी जिससे एक जो क्राइसिस क्राइसिस की सिचुएशन थी उससे हम उसको हम टैकल करें और कंट्री को उस क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर हम निकालें। सो दैट्स वाई दीज थ्योरी हो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 1939 से 1945। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कहीं ना कहीं जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको कहीं आप कह सकते हैं कि उससे यूएस को बाहर निकालने में भी एक हेल्प की। हालांकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी, बट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक ग्रोथ होना उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अब ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, एक कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को समझ पाए। और ये एक सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी भी मॉडल या थ्योरी को पढ़ने के लिए। अब मेन सेक्शन इसका ये आता है, मोस्टली ज्योग्राफी जो उस टाइम पीरियड में थी अगर हम ध्यान से देखें तो वो पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये जो दो चीजें हम पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत अभी उतनी नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जियोग्राफी इस पे कभी हम लोग डिटेल में अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जियोग्राफी का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे ऑलरेडी चैनल पे मैंने बहुत पहले, जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो 4 से 5 साल पहले इस पे मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर अपलोड किया था। हो सकता है उसमें आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा अप डाउन मिले, बट उसमें मैंने अपने खुद लिखे हुए नोट्स से इस पूरे टॉपिक को लगभग 1 घंटे के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। उसका ये थंबनेल है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसको देखिएगा। इसमें मैंने इसी चीज़ों पे बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जियोग्राफी इसका बहुत ही एक अच्छा सा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या चल रहा था कि ज्योग्राफी की बहुत आलोचना हुई, बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई भी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल नहीं थे, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जिससे हम अपने एनिमी को कोई लॉस पहुंचा सके। तो कंट्री तो इसी वे में सोचती है कि अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो टेरेन की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जो रीजन्स की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट से लेके रेनफॉल से लेके हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, हमें वॉर की मैपिंग करने, वॉर की सिचुएशन में हमें रूट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक उसी तरह का विषय है। लेकिन मोस्टली जो नेचर था उस समय ज्योग्राफी का वो डिस्क्रिप्टिव था। सो दैट्स वाई बहुत क्रिटिसिज्म होता है और वहीं से स्टार्टिंग होती है। हालांकि पॉजिटिविज्म का जो विचार है, जो प्रत्यक्षवाद का विचार है, जिसमें हम बात करते हैं मैथमेटिकल वे में किसी चीज को रखने की, और वहीं से आगे हम
क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की फिर बात करते हैं कि हम मॉडल्स को डेवलप करें, हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डेवलप करें, और हम किसी चीज को बस इस वे में ना बताएं कि ये चीज ऐसे है, बल्कि हम उसको नंबर्स में बताएं, हाइट, विड्थ, डेप्थ, जो भी उसके वे में वहां पे एप्लीकेबल है, हम उस चीज का वहां पे यूज करें। यहाँ से ज्योग्राफी में मॉडल्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इस तरह की रिसर्च स्टार्ट होती है, इस तरह के वर्क्स स्टार्ट होते हैं, और ज्योग्राफी का जो एक स्वरूप है वो फिर धीरे धीरे बदलता है। ठीक, इसके पहले क्या प्रॉब्लम्स थी वो अभी हम लोग डिस्कस किए। और इसीलिए जैसे रेवेंस्टीन का आप मॉडल पढ़ेंगे, रेवेंस्टीन के मॉडल में आपको एज सच कुछ फॉर्मूलाज नहीं दिखेंगे, उन्होंने बस अपनी बातें बताई हैं, बातें उनकी सही हैं, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है वहां पे। उससे पुराने, और उनका मॉडल कब का है, 1885 और 1889 में उन्होंने अपने मॉडल्स दिए, मतलब 2 ईयर में पब्लिश हुआ उनका काम, मतलब 1880 के दशक का मॉडल है। अगर हम और पीछे की थ्योरीज में जाएं तो सेम ही पैटर्न हमें दिखाई देगा। सो दीज वर द टोटली डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ कंटेंट। एंड डिमांड किस चीज की थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? So they want some precise information, some mathematical models, some formulas, some mathematical information and all these things. तो इस तरह की चीजों की नीड थी, और उस नीड को फिर पूरी कब हुई, जब ज्योग्राफी में आती है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो जैसे ये जो थ्योरी है लीस्ट एफर्ट की, जिफ की, यहाँ पर आपको एक सूत्र मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा। इसके पहले अगर हम 1929 में रैली के मॉडल को देखें, उसमें भी फॉर्मूला है। तो मेनली क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो ज्योग्राफी में होती है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही एक तरीके से हो जाती है, क्योंकि इस तरह की चीजें जब शुरू होती है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ तो 1946 में एकदम से ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गई, ऐसा नहीं था। वो साथ ही साथ चीजें चल रही थी, आलोचना भी हो रही थी, और जो इस तरह के स्कॉलर्स थे वो उस दिशा में काम भी कर रहे थे। यहाँ पे कुछ नाम ऑलरेडी हैं, पीटर हैगेट, शोरले, बीजीएल बेरी, बहुत सारी बुक्स भी हैं। जब आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत चीजें आपको वहां पे जानने को मिलेंगी। यहाँ पे तो जस्ट मैंने एक स्टोरी के रूप में सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो 1929 में मेनली हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग 1940s के डिकेड में मानते हैं, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसके पहले से भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो काम करते आ रहे थे इस तरह के फील्ड में। तो रैली का जो मॉडल है वो वैसा ही एग्जाम्पल है। उनका मॉडल 1930 के दशक में आता है, कहीं कहीं 1929 लिखा है ईयर, कहीं कहीं 1931 लिखा है, लेकिन हम जनरलाइज वे में 1930s कह सकते हैं। तो वो 10 साल पहले ही उस तरह के काम वो करना शुरू कर चुके थे। लेकिन मेनली वाइडली अगर हम देखें बुक्स में तो यही लिखा जाता है कि ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मेनली उसकी एंट्री होती है 1940s के डिकेड में, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये एक पूरा मैंने खाका तैयार किया कि क्या उस समय बैकग्राउंड था, किस तरीके के मॉडल्स बन रहे थे, और किस तरह के मॉडल्स की, किस तरह के ज्योग्राफी की नीड जो है वो लोगों को थी, और ज्योग्राफी क्यों अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही थी, और क्या फिर फंडामेंटली चेंजेस ज्योग्राफी में होते हैं। हालांकि इसकी भी आलोचना हुई आगे चल के, और तभी आगे चल के रेडिकल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, बहुत सारे ज्योग्राफी के पैराडाइम्स का डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी ही नहीं, ये एक ऐसा पार्ट है, अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी आंसर को बहुत बेटर लिख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के जो पैराडाइम्स है उसमें समय समय पे चेंज आया है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में इतना ज्यादा मैथ्स यूज होने लगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, वो नेग्लेक्ट होने लगे। तो इस वजह से आलोचना हुई। फिर बिहेवियरल ज्योग्राफी आती है, फिर रेडिकल आती है, फिर वेलफेयर ज्योग्राफी आती है, और तरह तरह के पैराडाइम्स आते हैं एक के बाद एक। कभी हम लोग उस पर अलग से, पुराने लेक्चर्स तो हैं ही, बट न्यू वीडियो भी मैं जरूर उस पर बनाऊंगा। तो ये एक पूरा पैराडाइम का शिफ्ट है, और इसको भी आप एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में ही देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का आना। So that this is also a paradigm shift in geography. So the paradigm shift section of geography is very important. How geography evolves uh,
इन सेपरेट टाइप ऑफ पैराडाइम। हर सेपरेट पैराडाइम में कैसे ज्योग्राफी ने खुद को, ज्योग्राफी कह सकते हो कि इवॉल्व हुई। हर ज्योग्राफिकल सेक्शन का एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस भी था। बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो इस तरह के क्वांटिटेटिव फॉर्मूलाज वाले थे, बहुत सारे बिहेवियरल भी थे और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट वाले भी थे। तो अलग अलग सेक्शंस की भरमार थी, अलग अलग सेक्शंस के स्कॉलर्स, ज्योग्राफर्स, मॉडल्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक कोई पैराडाइम आगे आता है, उसकी आलोचना होती है, फिर दूसरा पैराडाइम उसके जो है स्थान को लेता है। ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये चीज कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज बैकग्राउंड में कह सकते हैं चल रही थी। अब हम लोग अपने मेन मॉडल पे आते हैं। ये अभी तक की जो पूरी स्टोरी थी, इसको समझना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये इसने एक बेस हमारे लिए बनाया। और ये स्टोरी हर तरह की थ्योरी में आपको यूज करनी है समझने के लिए। हालांकि जब एग्जाम में तो आप टाइम कम होता है, मेनली थ्योरी पे ही हम बात करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी समझना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मेनली प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट में मैंने जैसे अभी पिछली वाली स्लाइड्स में ये चीज बताई थी कि जॉर्ज किंग्सले जिफ वॉज अ लिंग्विस्ट एंड ही डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च ऑन लैंग्वेजेस। तो इस पे मैंने अलग से कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं। So basically, Jiff derived the principle of least effort from linguistic patterns, but extended it as a general law of human behavior. So he did some deep research on language and basically उनका ये कहना था कि हम लैंग्वेज जब यूज करते हैं तो हम मिनिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं। हम उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं जो इजी होते हैं और जो हम ज़्यादा बार बोलते हैं। और इस तरीके की उन्होंने मतलब अपना जो भी लैंग्वेज का रिसर्च था उसका उनका कंक्लूजन ये निकल के आया। और यहीं से उनकी जो ये लीस्ट एफर्ट की थ्योरी है, ये माइग्रेशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो इसका बेस क्या था? इसका बेस था लैंग्वेज, कि जिस तरीके से लैंग्वेज यूज में हम मिनिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से कहीं जाने में भी हम एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम मिनिमम एफर्ट ही लगाएंगे। तो आपको ये एक याद रखना पड़ेगा कि एक ही वॉज अ लिंग्विस्ट एंड ही started to develop this particular concept on the basis of language। तो कोई भी प्लेस होता है वहाँ पे हम पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, दो एस्पेक्ट हम जानते हैं। बेसिकली पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो डेस्टिनेशन है वहाँ की, जो बेटर अच्छी चीज़ें, जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो हमें पुल कहीं ना कहीं करेंगे, माइग्रेशन करने के लिए प्रेरित करेंगे। और जहाँ हम हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और हमें पुश करते हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जैसे अगर ये कोई प्लेस है और ये अनदर प्लेस है और हमें यहाँ पे अगर जाना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमें पुल कर रहे होंगे। यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज होंगी, बेटर लिवलीहुड के ऑप्शंस होंगे, बेटर रहने के ऑप्शंस होंगे और एक सिक्योर हमें फ्यूचर यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमारा डेस्टिनेशन है और यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमें प्रेरित करेंगे कि हम कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ की ओर हम माइग्रेट करें। तो ये होते हैं पुल और पुश फैक्टर्स। हालांकि एक चीज का ध्यान देना है कि पुल पुश फैक्टर्स, कोई भी आप माइग्रेशन की बात करेंगे, पुरानी थ्योरी से लेके अभी 2026 में बहुत तरह तरह के माइग्रेशन हो रहे हैं। हम अक्सर फोर्स्ड माइग्रेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड इस समय इतना क्राइसिस में है, सिविल वॉर्स चल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करें तो फोर्स्ड माइग्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है वो। जितना अफगान्स का जो फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ है उस पूरे बॉर्डर पे, ड्यूरंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सीरियन सिविल वॉर की बात करें, अफ्रीका में जो भी सिविल वॉर्स चल रहे हैं उनकी बात करें, जो भी प्रॉब्लमेटिक रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। तो पुल पुश फैक्टर्स हर जगह है, लेकिन
जब भी इसका जो स्पेशली यूज जो है, मोस्टली ली ने बहुत बार इस टर्म का यूज किया है। तो हमें ये नहीं लिखना कि रेवनस्टीन ने पुल पुश टर्म दिया, या फिर हमें जिफ ने पुल या पुश फैक्टर टर्मिनोलॉजी का यूज किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। यहाँ जस्ट मैंने बस एक्सप्लेनेशन के लिए इसको चीज को यूज किया है। लेकिन ली की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ली की थ्योरी में डीपली पढ़ेंगे कि उन्होंने किस एस्पेक्ट में पुल और पुश की बात की है। उन्होंने वाइडली इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो ली वाली थ्योरी में हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मैं समझने के लिए पुल और पुश फैक्टर्स वाले एग्जांपल्स लेके आया हूँ, जिससे वो आपको इजिली समझ में आए। बट जिफ ने या रैली ने या रेवनस्टीन ने डायरेक्टली पुल पुश टर्मिनोलॉजी का यूज अपने माइग्रेशन थ्योरी में नहीं किया है। सो आई am using these terms only for explanation here। तो ये हो गए जैसे पुश फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, लैक ऑफ सर्विसेज हो गया। पुल फैक्टर्स में जॉब्स, एजुकेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स। So these factors are working as push factors and pull factors, and these two factors are very important for any migration. So एंड एफर्ट्स। अब एफर्ट्स में क्या है? डिस्टेंस, ट्रेवल कॉस्ट, इंफॉर्मेशन गैप, कल्चरल डिफरेंसेस। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मेनली इस ये जो थ्योरी है, अगर हम रैली वाली थ्योरी देखें, अब आप इसमें ये देखिए, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो रेमनस्टीन की मॉडल में उनका स्टार्टिंग ही होता है डिस्टेंस डीके फंक्शन से। डिस्टेंस डिके की वो बात करते हैं, डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस डिके फंक्शन। सो अ ग्रेटर डिस्टेंस, अ हाई डिस्टेंस create a low migration और weak migration wave, you can say। एक निगेटिव रिलेशन है वहां पे, विलोम संबंध है उस चीज में, डिस्टेंस डिके फंक्शन की अगर हम बात करें। इसके और भी रेमस्टीन ने तो बहुत सारे लॉज दिए, बट मैं एक लॉ की जस्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम रैली वाला थ्योरी जो है वो देखें, उस मॉडल को देखें, तो वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक साइज की बात की है, पॉपुलेशन साइज की बात की है, किसी डेस्टिनेशन के, किसी जिले की, किसी डिस्ट्रिक्ट की। साथ ही में उन्होंने भी डिस्टेंस वाली बात की है। तो ये मॉडल कुछ नया लेकर के नहीं आता है। इस मॉडल ने सेम टू सेम जो रेवनस्टीन ने कहा था, फिर आगे चल के जो रैली ने कहा, सेम उस चीज को कॉपी करके उसका एक इजी सा वर्जन है केवल। सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट इज जस्ट सिंपल वर्जन ऑफ रैलीज मॉडल और रेवनस्टीन्स लॉज ऑफ माइग्रेशन। इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा एक चेंज मिलेगा। रैली के मॉडल में m इज इक्वल टू के पी वन पी टू अपॉन डी स्क्वायर था, दोनों प्लेसेस की पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस। सो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जस्ट डी स्क्वायर की जगह डी है। तो जहाँ m इज इक्वल टू के पी वन पी टू अपॉन डी स्क्वायर हमें रैली के मॉडल में मिलता है, यहाँ पे हमें डी स्क्वायर की जगह सिर्फ डी मिलता है। बाकी सभी चीजें बिल्कुल सेम हमें दोनों ही मॉडल्स में दिखाई देती हैं। और ये मॉडल सिर्फ इसी चीज की बात करता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है और जो पर्सन है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन में कमी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस और माइग्रेशन में एक अपोजिट रिलेशन है, एक विलोम संबंध है। और ये चीज माइग्रेशन को प्रभावित करती है। अब अगर हम इस चीज का, हम लोगों ने बेसिक्स देखे, बैकग्राउंड देखा, अगर हम रेलिवेंसी देखें, तो रेलिवेंसी अभी के समय में इस मॉडल की बिल्कुल भी नहीं है। इवन जितने भी डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल्स हैं माइग्रेशन के, जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जैसे कि रेवनस्टीन का मॉडल, रैली का मॉडल, या जिफ का ये वाला मॉडल, ये कोई भी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल आज के समय में रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि अभी के समय में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मैंने भी काफ़ी एरियाज में रिसर्च किया हुआ है, और मैंने ये देखा है कि लोग अब जब भी माइग्रेट करते हैं तो वो डिस्टेंस उनके लिए उतना एक बड़ा मैटर नहीं होता है। अगर उनको बेटर कंडीशन मिल रही है, उनके लिए लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सो दे कैन डेफिनेटली गो। तो ये चीज होती है। तो अब पूरा का पूरा खेल मेंटल मैप का है।
उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी का एक वो चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो बाद के मॉडल्स आए, चाहे स्टोफर का मॉडल हम देखें, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, या कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, या फिर आगे चल के ली का मॉडल, या अदर जो भी उसके बाद जितने भी मॉडल्स आए 1970s में, 1980s में, कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल 1960 में आता है, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल तो 1940 में ही आ जाता है। तो उन मॉडल्स में हमें ये जो कमियां इन मॉडल्स की थी वो हमें कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देती हैं। तो सबसे बड़ी इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट यही है कि ये मॉडल, हम ये 2026 की बात कर रहे हैं और मॉडल कब का है, 1940 का। तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। और जो बातें इसमें बताई गई हैं उस समय के हिसाब से सही हैं, क्योंकि उस समय की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस तरीके की थी, किस तरीके की कंडीशंस वहाँ पे थी, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अभी के समय में तो ये मॉडल कहीं से भी हमें रेलिवेंट नहीं नज़र आता है, जो कि सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड है कि अगर हाई डिस्टेंस हाई डिस्टेंस इज इक्वल टू मोर एफर्ट, सो इज इक्वल टू लो माइग्रेशन। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे पर्सन को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन में कमी आएगी। क्योंकि उस समय निश्चित तौर पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं, किस तरीके की चीज़ें, इस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अभी के समय में उतनी रेलिवेंसी हमें इसकी नज़र नहीं आती है। तो ये दोस्तों रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। और ये हमारा तीसरा एक ऐसा मॉडल था जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाला मॉडल था। अगर हम बाकी दोनों को भी थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लें लास्ट में, तो एक समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि रेवनस्टीन का मॉडल आता है 1880 के दशक में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए माइग्रेशन के। जैसे डिस्टेंस डिके फंक्शन की वो बात करते हैं, वो फीमेल के माइग्रेशन की बात करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन जो है वो फीमेल करती हैं। इकोनॉमिक एम्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है माइग्रेशन में। माइग्रेशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है। माइग्रेशन जो होता है उससे जो हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। तो इस तरीके के 6-7 लॉज दिए रेवनस्टीन ने, जिसमें कि जो मैंने कुछ आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज थे। इसके बाद आता है मॉडल रैली का ग्रेविटी मॉडल, जिसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर माइग्रेशन होना है तो उसमें जो डेस्टिनेशन है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा वो जो डेस्टिनेशन है उसका इकोनॉमिक साइज भी बड़ा होना चाहिए, तभी वो लोगों को आकर्षित कर पाएगा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक साइज बड़ा होगा तभी वो लिवलीहुड दे पाएगा लोगों को, और डिस्टेंस भी नज़दीक होना चाहिए। तो रैली ने तीन चीज़ों पे बात की, तीन फैक्टर्स पे बात की है: इकोनॉमिक साइज ऑफ द destination, population of the destination, and the distance between टू प्लेसेस, जहां से जहां की ओर माइग्रेशन होना है दोनों का डिस्टेंस भी नजदीक होना चाहिए। तो तीन फैक्टर्स पे बात की रैली ने। थर्ड जो आज हम लोगों ने देखा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। सो इन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जिफ ने केवल एक ही चीज पे बात की है, डिस्टेंस। जो रेवेंस्टीन का डिस्टेंस डीके फंक्शन है सेम उसी चीज को कॉपी किया कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, हाई डिस्टेंस अगर है तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, और अगर एफर्ट ज्यादा लगेंगे तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। So if we summarize all three models, we can say in Remenstein model, he discussed about some certain laws of migration like females migration in shorter distance, and distance decay function, economic aims play important role in migration, and some other laws as well. In Rayleigh's model, he discussed three important factors like economic size of destination, population of the destination, and distance between two places. And in this model, in third model, in principle of least effort, GKG discussed only one aspect. He discussed about the effort, and effort is very important in his model. A higher effort creates a
low migration or weak wave of migration, and low effort is equal to uh, powerful wave of migration, or you can say a high migration. तो ये चीज एक हमें तीनों मॉडल्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये एक पूरा खाका यहाँ पे तैयार होता है। रेवेंस्टीन का मॉडल थोड़ा लंबा मॉडल है, बहुत सारे लॉज उन्होंने दिए हैं, 6 से 7 उनके लॉज हैं, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे 1 घंटे के लेक्चर में। रैली का मॉडल कंपेरेटिव थोड़ा छोटा है, उन्होंने 3 फैक्टर्स पे बात की है, वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं अभी हम लोग देखें। और जीके जीव का मॉडल उससे भी छोटा है, सिर्फ उन्होंने एक ही फैक्टर पे बात की है। और ये तीनों ही डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जो कि माइग्रेंट को बांधते हैं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी खुद के सोचने की क्षमता है, उस पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाते हैं। और यही एस्पेक्ट, यही चीज इन तीनों मॉडल्स की रेलिवेंसी को कहीं ना कहीं घटाने का काम करता है, उस चीज को, रेलेवेंसी को कम करता है, और यही सबसे इसका क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी है। तो ये रहे तीनों मॉडल्स। और अब आगे के जो हम लोग मॉडल्स देखेंगे, हम लोग देखेंगे सैमुअल एंड्रयू स्टोफर का 1940 में आया हुआ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है और रेलिवेंट भी है आज के समय में। इसके बाद 1960 में इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है, कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, और वो स्टोफर ने ही उसको दिया था। तो ये दोनों हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों मॉडल्स अलग नहीं है, दोनों मॉडल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो हमारा कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल है वो कहीं ना कहीं इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। सो दैट्स वाई वी विल कवर दीज टू मॉडल्स इन अ सिंगल लेक्चर। एंड उसके आगे फिर ली का हम मॉडल देखेंगे, ली की माइग्रेशन थ्योरी, जहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट, पुल पुश फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ली की ये टर्म्स, ली के जो ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और वहाँ पे उन मॉडल्स में हम देखेंगे कि इंडिविजुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो एज अ पर्सन किसी के जो uh, कह सकते हो सोचने की क्षमता है, वो किस तरीके से माइग्रेशन में एक रोल प्ले करती है, जो कि जो डिटर्मिनिस्टिक टाइप्स के मॉडल्स थे उनमें उस चीज का हमें अभाव दिखा। एक तो वो चीज है। फिर आगे अभी विल्बर जेलेंस्की का मॉडल और अदर कुछ छोटे छोटे मॉडल्स हैं, उनको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।